and what is the ecstasy that she feels that's millions of times greater than mine. So Krishna came to taste in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Unat Ugalara Sam, Swabhakti, the love of Srimati Radhika. Then the second internal reason is the call of Sri Advaita Acharya. The religious principles of each age is given by the Yuga avatars, the manifestations of Mahavishnu, including Advaita Acharya. But Advaita Acharya alone could not give what he knew Lord Krishna wanted to give now. After Krishna disappeared 5,000 years ago from this world, Krishna went back to his own abode, and he was desiring to give the world what he had not given in a long time. He said, I've given Varnava love for me in awe and reverence, but that kind of love in awe and reverence does not attract me. I want to give that kind of love that astounds me. So therefore, I'll go to the world and set the perfect example of that kind of love that will astonish you and me. So he desired to do that, but when he would come was not established. So he came when he was called by Sri Advaita Acharya, who worshipped him with tulsi leaves and the water of Ganges. Srila Gurudev said it's so powerful, this worship of tulsi leaves, that if one worships Krishna with tulsi leaves in the mood that Sri Advaita Acharya worshipped him, with weeping and calling out to the heart of love, then Krishna can appear. Krishna can manifest in his heart and through his heart in the whole world. So the second internal reason is the call of Sri Advaita Acharya. Then there are two external reasons. The first external reason is, as the devotees have been quoting, Anarpititvim Jarat Karunaya Tirnamlo Samarpayitam Unajvalas Swabhakti Sriyam. Sriyam, the beauty of Swabhakti, the beauty of Sri Radhika's love. Imagine a creeper that is wound around a tree, and the air has a very great taste to play with that creeper when that creeper is full of fruits and leaves and manjari buds. So the beauty of the creeper of Srimati Radhika's love is the service to Srimati Radhika. Prema ras niryas kodite pracharan raga marga bhakti loke Prema ras niryas kodite acharan aswadan Rag Marga Bhakti Loke Bodhiche Pracharan. Krishna came to taste the essence of Manakya Mahabhav, the highest love for himself. And he came to give the path of Rag Marga Bhakti, the path to achieve Swabhakti Sriyam, which he had not given, as Srila Gurudev said, since the previous day of Brahma, so many trillions of years before. So Krishna said, after he left this world and he went back to his abode, Goloka Vrindavan, the only way that I'm able to give this kind of love that astounds even me, without which the entire world is useless, is if I come and set the example. And he quoted himself in the Bhagavad Gita that everybody follows great personalities. Whatever example great personality sets, the whole world follows. And if I do not set the example, then the whole world will be destroyed. So Krishna is quoting himself to show that I will come and exhibit spontaneous love in the mood of conjugal love. And I will teach the world by my own example. And then, through his so many devotees, like Srila Rupa Goswami and others, he actually gave this Manjari Bhav. In fact, Chaitanya Mahaprabhu sometimes exhibited the mood of the Manjaris, picking flowers for Radha and Krishna. So that's the first external reason to establish Bala Marga Bhakti. Araja Bhagwan Brajeshatanayasa Dhamma Vrindavanam. He came to establish the love of Braj. Ramyat Karchidupasanam Brajabadu Bargena Jakopitam.
Chaitanya Mahaprabhu came to teach this to the fortunate jivas, and Srila Viswanath Chakrabarti Thakur said, I'm not interested in anyone else's teachings. When Chaitanya Mahaprabhu was at the Rath Yatra festival, he said, I'm not a Sudra, I'm not a Vaishya, I'm not a sannyasi, I'm not a brahmachari, I'm a servant of the servant of the servant of he whose Lord is the gopis. And Gurudev said that he didn't come to say that I'm the servant of that Krishna, who is the Lord of Rumini and Satyabhama, where he's prominent and they're servient. But he came to teach, I am the servant of he whose Lord is the gopis. Aradu Bhagavan Vrajeshtanayas, the son of Nanda and Yashoda, who didn't come in the Vishnu form like he came to Devaki and Vasudev, but who came, in Gurudev's words, as a little baby to cry, kya, kya, kya. So that's the first external reason. And the second external reason is to establish Yuga Dharma. Yuga Dharma is established in every age by the manifestations of Mahavishnu, as mentioned earlier, like Sri Advaita Acharya. But Krishna said when he was thinking, when he went back to Goloka Vrindavan, I am going to establish the Yuga Dharma for this age, that is chanting of the holy name, but I'm going to invest it with Braj Prem. Only Krishna could give that. And in fact, only Krishna, covered by the mood of Srimati Radhika in the form of Chaitanya Mahaprabhu, could give that. So the second external reason is to establish the Yuga Dharma with the addition of Braj Prem. That kind of love that makes even Krishna mad. There's one painting that I did of the four mantras. One of the mantras has a braid, and that braid is waving in the wind. And Gurudev told me, I hope I'm allowed to reveal this, Gurudev told me to make the edge of the braid, the end of the braid, look like a serpent's mouth, because the manjaris have their only desire to meet Radhika Krishna and arrange things in a way that Krishna goes mad in separation from Radhika. When Krishna sees that manjari, then Krishna practically faints. He's so enchanted because of her love for Srimati Radhika. So just in summary, Krishna came as Mahaprabhu for four reasons. First internal reason is to taste the foods of Radharani. Second internal reason is to answer the call of Advaita Acharya. The first external reason is to establish Raghunuga Bhakti. And the second external reason is to establish the Yuga Dharma with Yajna Braj Prem. Gaur Premanandi. Very, very good. You have established all these things in brief, but all reasons you told. बेटी सविता महाप्रभु के आविर्भाव होने के कारण पर कुछ प्रकाश डाल नहीं है। एक माइल दूर रहो। कहाँ से ये पगली बेटी मिली? एक घंटा बाद आएगी। वो अमित बेटी यहाँ पर बैठा करो, अन्यथा आने नहीं देंगे, बाहर में रहना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय
कृष्ण चैतन्य नामने गौरधिषे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मो विष्णुपादस्तोत्रस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात उपस्थित ये दंडीपादगण वैष्णव एवं वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा जथा जोगु दंडवत प्रणाम। अभी श्री गुरु महाराज जी आज्ञा दिए महाप्रभु के आविर्भाव का कारण। हम लोग सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जी से सुने अनर्मे चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पणतो उन्नत उज्ज्वल रसाम सौभक्ति श्रियम हरिपूर्ण सुंदर द्युति कथम संदीपितः सदा हृदय कंदे स्फुरितव सचिनंद नंदनः। उसके बाद में उनके चार कारण सुने, दो प्रमुख और दो गौण। प्रमुख में सबसे पहले सुना राधा या प्रणय महिमा की दिशोवा कि राधा जी की प्रणय महिमा क्या थी। इसके विषय में कुछ प्रकाश डालते हुए, क्योंकि आप लोगों ने पहले सुन लिया, रिपीट करना कोई मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। एक बार हम लोग गुरु महाराज जी के साथ जगन्नाथपुरी गए, वहाँ हम लोगों ने महाराज जी के वैष्णवों के चरणों में बैठ के सुना। महाराज जी बतला रहे थे कि जब श्याम सुंदर कृष्ण लीला जब अंतर ध्यान हो गई, अप्रकट वृंदावन में एक दिन श्याम सुंदर बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे, आहा मेरी कैसी रूप माधुरी, जिस रूप माधुरी को देखकर सारा जगत मोहित हो जाता है, परंतु मैं जब श्री किशोरी जी की रूप माधुरी को देखता हूँ तो मेरा मन मेरे नियंत्रण नहीं रहता है। सारा संसार मेरी वंशी की रव को सुनकर उन्मादित हो उठता है, परंतु मुझे पागल करने वाली एकमात्र श्री वृषभानुनंदिनी है, जिनके चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनने के लिए मैं हर समय ललायित रहता हूँ, मेरे कान खड़े रहते हैं। मैं रसों वही सा हूँ, इसलिए मैंने समस्त रसों का आस्वादन किया, परंतु जो राधा, मेरी जो आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा जी हैं, उस जातीय का आस्वादन नहीं कर पाया। मैं कभी पागल नहीं हुआ, मैं कभी विरह में उन्मादित होकर कि कभी भी कमान वृक्ष को आलिंगन करते हुए कृष्ण समझकर उनसे वार्तालाप नहीं की। अद्भुत चमत्कारिकता उनका प्रेम था। विशेषकर उद्धव जी के आने पर विरह माथुर विरह कातर का जो उन्होंने भाव था, उस भाव से मैं वंचित रहा। यह श्याम सुंदर की कृष्ण लीला में वांछा पूर्ण नहीं हुई, उसकी मैं इस लालसा को कैसे पूर्ण करूं, इस विचार को सोच ही रहे थे श्याम सुंदर को लोग अप्रकट वृंदावन में, कैसे इसका आस्वादन करूं। हम लोग सुने हैं कि श्री महाप्रभु ने राधा जी के भाव को चुराया। क्योंकि श्री वृषभानुनंदिनी समझती थी कि श्याम सुंदर का हृदय, उनका सर्वांग अति कोमल है। जब मैं कृष्ण विरह में पागल नहीं होकर हा नाथ हा रमण क्वासी क्वासी महाभुजा होकर जब मैं पृथ्वी पर गिरती तो मेरा तो शरीर उसको सहन कर लेता, परंतु प्यारे का शरीर तो इतना कोमल है, उनका अंग वह इस पछाड़ को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री किशोरी जी नहीं देना चाहती थी अपने भाव को, परंतु श्याम सुंदर ने जोर करके, जब जोर भी नहीं चुराया लगा तो उन्होंने चुरा लिया उस भाव को। श्री किशोरी जी ने सोचा, आहा इस भाव को चुरा लिया, अब मेरा ये कर्तव्य है कि इनके भावों की पूर्ति कैसे करूं। इसीलिए श्री वृषभानुनंदिनी ने स्वयं अपनी अंग कांति से, हम लोग कहते हैं अंग कांति से ढककर कृष्ण गौर कृष्ण बनकर आ गए। गुरु महाराज जी वहां बोल रहे थे जगन्नाथपुरी में, अपने अंगों से प्रत्यंग को नहीं ढका। श्री वृषभानुनंदिनी ने श्याम सुंदर के शरीर पर अपने शरीर का जैसे आवरण लगा दिया हो,
बतलाया वहाँ पर। समझ रही थी वृषभानुनंदनी कि प्यारे मानेंगे नहीं, मेरे भाव को आस्वादन करेंगे और विशेषकर जब विरह आस्वादन करेंगे और पृथ्वी पर पछाड़ खा कर गिरेंगे तो मैं पहले गिरूंगी पृथ्वी पर, मेरे ऊपर प्यारे आ जाएंगे। उनकी रक्षा करने के लिए ही श्याम श्री किशोर जी ने, वृषभानुनंदनी ने श्याम सुंदर के श्रीअंग को ढका था। ये मूल कारण श्री गुरु महाराज जी ने आज से लगभग 22-23 साल पहले जगन्नाथपुरी में हम लोगों को समझाया था, हम लोगों को बताया। हमें पूछ रहे थे महाराज जी से, उस समय महाराज जी बड़े स्वस्थ भी थे, बड़े महाराज जी फ्री भी थे, इतने लोग नहीं थे, बड़ा सुख मिलता था, बड़े सत्संग, जब कुछ पूछने की इच्छा होती तब महाराज जी के पास चले जाते थे और अबोध बालिका की तरह से महाराज जी के पास श्री चरणों में, वैष्णवों के चरणों में बैठकर हरि कथा सुनने का सुयोग मिलता था। महाराज जी ने वहाँ ये बतलाया कि गौर कृष्ण बनने का यही कारण था कि वृषभानुनंदनी प्यारे के अंगों की रक्षा करने के लिए तैयार थी, इसलिए उन्होंने अपने अंगों से ही श्याम सुंदर के अंग को ढक लिया था। यही कृष्ण का, गौर कृष्ण बनने का कारण था। लेकिन वो सोच ही रहे थे कि इस धराधाम में जाकर कैसे आस्वादन करूं, क्या बहाना लगाऊं। उसी समय अद्वैताचार्य जी की आराधना का समय उपस्थित हो गया था। अद्वैताचार्य जी तुलसी जल और गंगा जल से आराधना कर रहे थे शुद्ध भक्ति के लिए, क्योंकि प्राय शुद्ध भक्ति लुप्त हो गई थी। हमारे करुण मिश्रा भक्ति में ही, करुण मिश्रा से भी क्या कहें, भक्ति के नाम पर ही, जो भक्ति भी नहीं है उसको भक्ति के नाम पर पूजकर सब लोग भक्ति के उन विमुख होते जा रहे थे। अद्वैताचार्य जी चाहते तो वो कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने आराध्य देव कृष्ण की तुलसी और गंगा जल से आराधना कर रहे थे। उसी समय यह कारण उपस्थित हुआ था। महाप्रभु जिस समय कृष्ण सोच रहे थे कि मैं राधा जी के भाव को आस्वादन करूं, उसी समय ये कारण वहां भी उपस्थित हुआ। जो दो गौण कारण बतलाए, पहला बताया अनर्पित चरिम चिराज करुणयावतीर्ण कलौ। क्यों ये बतलाया, गौण में ये प्रमुख गौण क्यों है, गुरु महाराज जी वही बतलाए थे कि रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। श्याम सुंदर सोच रहे थे जब मैं उन्नत उज्जवल रस को आस्वादन करूंगा तो करुणा के कारण, कृपा के कारण उसकी शोभा को, उसकी संपत्ति को भी मैं वितरण कर दूंगा, उससे समझ सके ब्रज भक्ति कैसी है। अभी पूर्व वक्ता महोदय से सुने थे कि महाप्रभु ने कैसी भक्ति का, शुद्ध भक्ति का कैसे प्रचार किया। श्रील नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्रोता श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर जी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि शुद्ध भक्त माने ही ब्रज भक्त। शुद्ध भक्त माने यहाँ तक कि द्वारका के भक्तों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, केवल ब्रजवासी भक्तों को ही शुद्ध भक्त कहा है। वहां पर अपनी इसी शुद्ध भक्ति को प्रचारित, स्वयं आस्वादन करने के लिए और जीवों को आस्वादन कराने के लिए ही महाप्रभु के हृदय में यह कारण उपस्थित हुआ। अनर्पित चरिम चिराग का भी महाराज जी बड़ा सुंदर वर्णन किए। शोभा संपत्ति को, जैसे श्री किशोरी जी को प्रेम की लता बतलाया है, तो गोपियों को पत्ता बतलाया है और मंजरियों को मंजरी बतलाया है। कितनी भी हवा चले, पत्तियां बेशक पत्ते से, कृपा से, लता से छूट जाएंगी, परंतु मंजरियां हिलती हैं, किंतु वृक्ष से नहीं छूलती हैं, वे कृष्ण रूपी वृक्ष से नहीं छूलती हैं। ऐसे गुण निगुण ब्रज के रस को, ब्रज की रसमय उपासना को स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने यह अनर्पित शोभा संपत्ति के वितरण की उनकी इच्छा थी, ये कारण था। चौथा कारण था युग धर्म स्थापना, जो कि आपने सुना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस धर्म, इसको और कलयुग का जो धर्म नाम संकीर्तन है उसको स्थापित करने के लिए महाप्रभु इन चारों कारणों से इस धराधाम में अवतरित हुए। महाप्रभु के अवतरित होने के बाद में महाप्रभु ने किन किन भक्तों से क्या क्या कराया, वह आप लोगों ने अभी पूर्व वक्ता महोदय से सुना था।
जैसे रूप गोस्वामी जी से रागानुगा भक्ति स्थापित कराई, श्रीला सनातन गोस्वामी जी से पैदी भक्ति की स्थापना कराई, श्रीला नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी से नाम की महिमा को स्थापित कराया, और श्री राय रामानंद संवाद अभी हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसी कार्तिक के नियम सेवा के अंदर हम लोग राय रामानंद संवाद सुनेंगे कि राय रामानंद संवाद में कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, गुणी भूता, प्रधानी भूता, संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा इत्यादि भक्तियों का कैसे क्रम बाई क्रम श्रीला महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से कैसे प्रश्न पूछते हैं और राय रामानंद कैसे महाप्रभु को प्रमाण के सहित इन सब भक्तियों का तारतम्य बतलाकर अंत में कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, राधा तत्व, विलास तत्व इत्यादि रस का वर्णन हम लोग राय रामानंद संवाद द्वारा हम लोग सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने स्वयं इस प्रेम भक्ति का आचार और प्रचार किया और भक्तों से कराया। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरु वैष्णव और महाराज जी से अनुरोध करते हैं, महाराज जी आप कृपा करिएगा, जिस रस में डूबे हुए हो एक कण का हम लोगों को पिलाकर भी हमारे सौभाग्य को, हमारे जीवन को सार्थक कर यहीं पर बैठा करना। We will continue this subject tomorrow also. There are so many good speakers, they have no chance to speak. Subject tomorrow also, विशेष करके अच्छे वक्ता रख रहे हैं, वो सब तैयार होकर के आएंगे। यह सब्जेक्ट बहुत गंभीर है, इसलिए चैतन्य श्री कृष्णदास गोस्वामी ने इसको पहले रख, यदि इसको समझ गया कोई तो राय रामानंद संवाद, रूप गोस्वामी का और सब संवाद अपने आप समझ में आ जाएगा। कल का विषय बोलेगा। Hare Krishna. Today Gurudev mercifully giving so many initiation. Due to lack of time, we could not announce your name. Your name will be announced here after class. Srinidhi Brahmachari. Hare Srinidhi Brahmachari. The name with the Srinidhi Brahmachari he will announce here after class after Arati. जो लोग गुरु जी से दीक्षा ग्रहण किया है, हरिनाम दीक्षा, उन लोगों का नाम श्रीनिधि ब्रह्मचारी प्रभु के पास है। वो प्रवचन के बाद डांस में बैठ करके अनाउंस कर देंगे। आज ताদের दीक्षा को हरिनाम হয়েছে, তাদের নাম শ্রীনিধি ব্রহ্মচারীর কাছে আছে, উনি আরতির পরে এখানে এসে অ্যানাউন্স করে দেবেন। হরে